If a consultant is sending you a patient, you have to 360-degree take care of that patient. Yeah. So, as a radiologist, what do you think that one should start with a job and then go into entrepreneur venture, or from the very beginning they can make a plan and jump into this thing? When I was a child, I always thought कि business का मतलब क्या होता है? Business का मतलब होता है कि किराने की दुकान खोलनी है. I think always for a non-risk venture. Radiology was always a choice subject, or stumbled on it because you got good marks? उनकी पहली MRI मशीन लगी तब अजीम जी प्रेम जी खुद मशीन डिलीवर करने आए थे. डॉक्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा. फाइनेंस किसी के पास ज्ञान मांगने जाते हो ना तो कभी कभी ऐसी चीजें बता देता है जो एक्चुअली तुम सोच भी नहीं सकते. सही. डॉक्टर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर, आप जो लोग फील्ड में हैं रेडियोलॉजिस्ट में, तो आप लोग को उनको कैसे सजेस्ट करेंगे टू हाउ टू गो अबाउट दिस? आई डिड द सेम थिंग है ना, वो पढ़ा रहा है और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बहुत क्यों एमबीए किया? यू सजेस्ट पीपल टू गो फॉर एमबीए, अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड. यू आर लाइक वेरी वेरी हंग्री फॉर ग्रोथ. एक आदमी की एक पर्सनैलिटी होती है, राइट. तुम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करो. डॉक्टर्स आर वेरी सेटिस्फाइड आल्सो. मार्केटिंग और ब्रांडिंग वो एक छोटे सेटअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे बड़ा सेटअप है तो आप क्या करते हो उसके लिए? Radiology is all about 100% B2B2C. In radiology, it is going to take over, and future of radiology is not very bright. So what is your take on that? How do you see the future of radiology? So suddenly get an idea. अरे यार इसने ये तो मिस कर दिया, ये तो इसने किया ही नहीं, अगर ये किया होता तो चल जाता. What are your hobbies? What do you do? उससे मिल रहा है कि वो कैसे सोच रहे हैं. तो आपका कुछ ऐसा कोई ऐसी जर्नी में लो पीरियड्स रहे हैं और वहां से आप कैसे कम बैक किया? कुछ भी एब्जॉर्ब करना है तो पढ़ना है, और कुछ भी फन करना है तो देखना है. देयर आर मंथ्स वेयर आई क्राइड, मतलब लिटरली इमोशंस आ गए आपके. इमोशंस आ गए कि यार आई प्लान शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स. व्हाट इज योर मंत्रा और व्हाट इज योर मेथड ऑफ मैनेजिंग टाइम? सर मैंने थोड़ी रिपोर्ट करी है, ये तो एआई ने करी है, आप एआई से साइन कराओ. Hello friends, today we have with us Dr. Amit Gupta, and he has been entrepreneur at core. After doing his MBBS and MS from BJ Medical College, Ahmedabad, he went to do his MBA, and after that he has worked in multiple places. He has worked in Mauritius, he has worked in Ahmedabad, and he has started a chain of radiology setups in Ahmedabad. So we have today a real doctorpreneur. Yeah. Right. So Amit, was this a intentional thing, or you are always an entrepreneur mindset, or what? So Pranav, Amit, thanks for making me here. Thank you so much for coming. Yeah, and congratulations on whatever you're doing. You're doing a great job. Thank you. And helping so many doctors, and just now you told me that you've reached to 20,000 doctors. Yeah. It's a great job. The doctors community actually needs something like this, and you're already there. So yeah, congratulations on that. Thank you so much. Becoming an entrepreneur, yeah. So I belong to a Banya family, and since the childhood, I always seen the community as a business community. And always thought I'll do something in the business. But when I was a child, I always thought कि business का मतलब क्या होता है? Business का मतलब होता है कि किराने की दुकान खोलनी है. That's the community all about. Yeah, वो अग्रवाल गुप्ता वो लोग सोचते थे कि this is the business. So, but yeah, when I passed out of 12th standard, got good marks, got admission in BJ Medical College, and then I understood that you can create some entrepreneurial thing out of radiology also. So yeah, that is about it. Yeah, but since the childhood, I always thought to become an entrepreneur, but then the definition of an entrepreneur was different, and now the definition of entrepreneur is different. Different, totally. And the people's perception also in the society also. पहले businessman मतलब entrepreneur था ही नहीं, मतलब businessman या आप service class में हो या business में हो. So it was like a great sir. So for as a radiologist, what do you think that one should start doing a job, or start with a job and then go into entrepreneur venture, or from the very beginning they can make a plan and jump into this thing? So I think it's always good that you do a job, you understand what are the moving parts in a radiology business. Directly jumping into entrepreneurship is not a very good idea, because there are a lot of things which you need to learn before you become an entrepreneur in radiology. Right. Just being a radiologist, just reporting things, being in a institutional setup is a different story altogether. You have to just take care of the reports. That's it. Right. But when you become an entrepreneur, you actually take care of the whole ecosystem. Correct. So when I say a whole ecosystem, you're also responsible for the patient who has been sent by a consultant. So if a consultant is sending you a patient, you have to 360-degree take care of that patient. Absolutely. You are responsible for the logistics of the patient. उनके क्लिनिक से निकला, आपके वहां तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, ठीक से पहुंचा, आपके क्लिनिक पे है, तब पेशेंट सीरियस हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो आपको उसका ध्यान रखना है. कस्टमर जर्नी जिसे बोलते हैं, पूरा जर्नी है. इट्स अ होल जर्नी. एंड देन फिर से उस क्लिनिशियन के पास पेशेंट पहुंचा, वहां तक वो पेशेंट ठीक ठाक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो
अगर आप नए कॉलेज से पास आउट होते हो आपको ये सब पता ही नहीं होता, ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि रिपोर्ट दी मेरा काम खत्म हो गया, पर इट इज मच मोर देन दैट। So, एक job करना- इट्स अ जॉब करना बहुत जरूरी है, it सीखना makes बहुत जरूरी है, सीखना एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, Hmm. इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट के अंदर और इंस्टीट्यूट के बाहर इकोसिस्टम एकदम डिफरेंट। डिफरेंट होता है, yeah. So radiology was always a choice subject, or you stumbled on it because you got good marks? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन यू गेट गुड मार्क्स तो पूरी दुनिया तुमको धकेल देती है रेडियोलॉजी की तरफ कि यार देखो तो रेडियोलॉजी करनी पड़ेगी। हाँ। तो या सो आई वाज ऑलवेज पर्सनली एक्साइटेड टू बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट, मतलब गिवन अ चॉइस आई वुड हैव बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट एंड आई बिकेम अ रेडियोलॉजिस्ट। बट 100 लोग रेडियोलॉजी लेते हैं तो 90 लोगों को तो क्योंकि मार्क्स आ जाते हैं तो मिल रहा होता है इसलिए ले लेते हैं, बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट चॉइस। Yeah. बड़ा डिफाइंड होता है Right. कि अगर तुम्हें इतने मार्क्स आए तो ये लेना चाहिए, इतने मार्क्स आए तो ये लेना चाहिए, Right. इतने मार्क्स आए तो Right. ये लेना चाहिए। तो True. चॉइस वाले लोग कम होते हैं चॉइस वाले भी लोग, मतलब ऐसा भी होता है जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने कोई ऐसी ब्रांच ली जो लो मार्क्स वाले लेते हैं, करेक्ट। पर वो कम होता है, कम ratio, होता है। 10-1% जैसा रेशियो होता है। Awesome, सर आपका जो जर्नी था जैसे एंटरप्रेन्योर का, सो यू डिड अ डिफरेंट स्टेप व्हिच इज टू एक्वायर सम ऑलरेडी हैपनिंग ब्रांड। तो उसका एक प्रीमियम देना पड़ता है, ब्रांड इक्विटी है किसी की और आपने प्रीमियम दिया। सो उस समय जो थॉट था कि वेदर टू स्टार्ट अ न्यू थिंग व्हिच इज अंडर योर नेम एंड टू एक्वायर समबडी एल्स, तो उन दोनों की चीज में आपने कैसे डिसीजन लिया? We acquired this brand called Usmanpura Imaging in 2012. Hmm. At that time, it was a 30 years old brand. ओके। मतलब जब उनकी पहली MRI मशीन लगी, तब अजीम जी प्रेम जी खुद मशीन डिलीवर करने आए थे। Okay. जी विप्रो। Okay. उतना ज्यादा प्रीमियम ब्रांड था। प्लस वो जो ब्रांड था उसमें वो अहमदाबाद में जितने डॉक्टर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते थे उस ब्रांड को पहचानते थे। ओके, सो दैट इज अ ह्यूज ब्रांड इक्विटी। ह्यूज ब्रांड इक्विटी। और उस समय अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मेडिकल की सीट्स हुआ करती थी। अभी भी सबसे ज्यादा ही होंगी, पर उस समय तो और भी बाकी सब जगह कम थी, अब बाकी सब जगह बढ़ गई है, तो अहमदाबाद में तो अभी भी ज्यादा है। तो उससे वो जो आसपास के 4-5 स्टेट्स में भी डॉक्टर्स जा रहे थे, तो वो लोग सब इस ब्रांड को पहचाने थे। एंड वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द ब्रांड। सो या वी काइंड ऑफ थॉट दैट इट इज अ नो ब्रेनर दैट यू शुड एक्वायर दिस ब्रांड। अपना स्टार्ट करोगे, 30 साल दोगे, तब ऐसा ब्रांड बनता है। यस। तो वी थॉट दैट वी विल एक्वायर दिस ब्रांड। So if you have money, then you can go and acquire a good thing. So in fact, we didn't have money also. It just happened कि we did a debt acquisition. So finance बहुत लोग पूछते हैं, सब डॉक्टर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो how did you manage that finance thing? I don't come from a very rich family, so the acquisition was in crores. So when I went and asked my dad कि पैसे चाहिए, तो बोले इतने पैसे तो मैंने देखे ही नहीं आज तक, दूंगा कहाँ से, मतलब it was out of question. तो we kind of then approached the banks and we met couple of people in the banks who were at a very higher position. Correct. And then we went and met them saying that कि सर आप हमको हेल्प करो समझाने में कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, exactly, हाँ। मैं लोन मांगने नहीं आया आपके पास। Right, समझ गया। मैं आपके पास ज्ञान मांगने आया हूँ। Correct, ठीक। तो जब आप किसी के पास ज्ञान मांगने जाते हो ना, तो कभी कभी ऐसी चीजें बता देता है जो एक्चुअली तुम सोच भी नहीं सकते। सही बात है। बिकॉज वो उसका फील्ड है। Yes. Right. तो उन्होंने बोला यार देखो ये प्रॉपर्टी है, ये मशीन्स है, ये सब अलग अलग पार्ट है इस एक्विजिशन के। तो हम प्रॉपर्टी और मशीन्स को मॉर्गेज कर लेंगे, ठीक है, और जिसको आपको पैसा देना है वो पैसा हम दे देंगे। ठीक है। एंड देन इट सीम लाइक सच ए इजी टास्क, मतलब मेरे को लगा ये तो क्या केक वॉक है, मतलब अच्छा इतना इजी होता है क्या? चलो फिर और एक्विजिशन करते हैं, मतलब गुड, क्योंकि डॉक्टर्स का ये चीज़ देखिए, आप एक्चुअली में बैंकिंग में मर्जर एक्विजिशन बोलते हैं, M&A बहुत होता है, और लोग फाइनेंस भी बैंक से लेते हैं, बट डॉक्टर कभी नहीं सोच सकता कि आप एक्वायर करने के लिए ब्रांड को यू कैन गो विदाउट लाइक एम्प्टी हैंड। आप तो एम्प्टी हैंड गए, आपके पास तो था भी नहीं, आपके पास आइडिया था कि मुझे एक्वायर करना है, कैन यू हेल्प मी, राइट? सो एज अ डॉक्टर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर, आप जो लोग इस फील्ड में हैं, रेडियोलॉजिस्ट में, तो आप लोग को उनको कैसे मतलब सजेस्ट करेंगे टू हाउ टू गो अबाउट दिट? गो टू द बैंक, आस्क फॉर द मनी, और गो विद अ बिग ब्रांड, कोलेटरल नहीं है आपका, कुछ ऐसा बैंकिंग पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हाउ डिड अ पर्सन और बैंक विल गिव द मनी? क्या सोच के देते हैं, मतलब acquiring so asset? I think अभी आज के जमाने में with the booming economy India has you have so many options. You don't need to have a collateral. You have something called CGTMSE. अब CGTMSE में तो 100 करोड़ तक उन्होंने लिमिट कर दी कि भाई आपको 100 करोड़ तक पैसा चाहिए, गवर्नमेंट उसका गारंटी ले लेगी। तो आई थिंक अगर आप खाली क्वालिफाइड हो, और अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप इस यूनिट से पैसा कमा के चला सकते हो, तो बैंक आएगी हेल्प करने आपको, बैंक मना नहीं करेगी। प्लस अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हो तो आपकी ब्रांड इक्विटी इतनी हो जाती है बैंक के लिए कि बैंक आपको 5 करोड़ तक का लोन तो बिना कुछ पूछे दे रही है, दे देगा, और बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है आज। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगेन आई विल आस्क अ लिटिल बिट फाइनेंशियल एंड दिस थिंग कि उन्होंने वैल्यूएशन करी होगी कि
व्हाट इज द रियल नाउ प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो वैल्यूएशन में वो डिवाइसेस की क्या प्रेजेंट वैल्यू, तो बैंक ने सारा प्रोसेस किया था कि हाँ, आपने बैंक ने- कंसल्टेंट हायर किया? नहीं, बैंक ने प्रोसेस किया था। बैंक ने कंसल्टेंट हमें बता दिया था, जो Okay. बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे उसने हमको हेल्प कर दी थी। ओके पर बैंक ने बोला था कि हमको ये काम करना है, हमको Okay. ये वाला जो लोन देना है हमको कैसे भी करके देना है, तो हाँ, बिकॉज तो इट आप वाज अ करके दो, वेरी लुक्रेटिव हाँ, काइंड ऑफ very- थिंग। हाँ। देन दे डिड द वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन के ऊपर उनको पैसा क्योंकि दे दिया क्योंकि उन्हीं के उनको। कंसल्टेंट तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, और उसके बाद उन्होंने पैसा दिया, एंड देन यू मेड अ एग्रीमेंट विद देम। फैंटास्टिक। Sir, I want to know ki if there is a young radiologist who is coming out in the market and he has experience, so how should he approach his work? What instrument he should purchase and what all he should establish? I think always go for a non-risk venture where you start with an ultrasound, X-ray, basic setup. So define non-risk for radiologists. Non-risk is अगर आप CT, MR दोनों डालते हैं तो जो प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ रुपए का बन जाता है। Correct. पर अगर आप सोनोग्राफी X-ray डालते हैं तो आप सब 1 करोड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल सकते Okay, so one crore is non-risk. हैं। Non-risk. Bit of risk is you put CT also. हाँ. आजकल MRI की इंडिकेशन ज्यादा है, CT की इंडिकेशन कम है, पर उसके साथ ही कंपटीशन भी ज्यादा है। Okay. तो अगर इफ यू चूज अ एरिया एंड यू वेरी श्योर दैट इस एरिया में इतना पोटेंशियल है और वर्जिन एरिया है, कंपटीशन नहीं है, एंड यू टेक अ रिस्क ऑफ सिटी इज ओके, बट अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आजकल क्या होता है कि एम्बिशियस हो गए लोग एंड फाइनेंस इजी हो गया, फाइनेंस इजी हो गया तो है, लोगों को हाँ. लगता है कि यार मैं एमआरआई भी डाल लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, पर फिर चलता नहीं है सेंटर। और अल्टीमेटली कितने सारे एमआरआई सेंटर कितने सारे, मतलब हमको रोज ऑफर आते हैं कि हमारा एमआरआई सेंटर खरीद लो, हमारा ये खरीद लो, हमारा वो खरीद लो। तो मुझे लगता है कि नॉन रिस्क से शुरू करना चाहिए। एक बार फील लो मार्केट का, समझो कि कैसे कंसल्टेंट भेज रहा है आपको, किस पैरामीटर्स पे आपको मिलेगा, इस एरिया में इतना सीटी मिलेगा, एमआरआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप अल्ट्रासाउंड एक्सरे डालोगे तो सीटी और एमआरआई के बारे में समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एंड then you want to put a pet or you want to put something else, yes, got it. So do you need to do extra studies and then go for it, जैसे इंटरनेशनल रेडियोलॉजी और बाकी जो होते हैं? See, every branch in any vertical, आप इंजीनियरिंग बोल लो, मेडिकल बोल लो, सीए बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब ब्रांच में जितना ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे उतने ज्यादा नीश आप कर पाओ, माइक्रो नीश हो जाएगा। हाँ, तो वही सेम रेडियोलॉजी में भी है कि जनरल रेडियोलॉजी करोगे तो आप जनरल रेडियोलॉजी जैसा सेटअप करोगे, Right. कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करेगा तो वो सिर्फ इंटरवेंशन करेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जैसे आप नीश में जाओगे ना, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। Right. फिर आप बाकी सब नहीं कर रहे हो तो उससे आपका ध्यान हट रहा है। तो फिर अगर आप वो एंजॉय करते हो, नीश को एंजॉय करते हो, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की है कि मैं नीश को एंजॉय करूंगा, तो करना चाहिए। Right. पर अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नहीं यार मैं तो इतना एक ही काम नहीं करूंगा, ये तो मजा नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ब्रॉड करना चाहिए। So from the one center of Usmanpura, and now how much you have grown? So we started in 2012 with one center of Usmanpura, which we acquired. We took almost 5 years to understand the business, see what's happening. Can we open a second center or not? So in 2017, after 5 years, we opened a second center in Patan. Okay. And then the third center we opened in Satellite. And then the fourth center we opened in Naroda. And today, after say 13 years, we are 23 centers. Okay, pan India or in No, Gujarat? only in Gujarat. Only And in we are the largest chain of imaging centers in Gujarat. Okay, And that's Awesome. 23 centers. awesome. 13 So years. how do you decide कि first center should be in the metro city or tier 2, tier 3? How do you make a decision? What तो market? पहला तो एक्विजिशन था ही अहमदाबाद में, हाँ. बिकॉज मिल गया, लक था, कर लिया। Correct. सेकेंड सेंटर वाज इन पाटन, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे पाटन में, उन्होंने बोला कि हमें एक सेंटर खोलना है, आप प्लीज हमारे साथ खोलिए। ठीक। तो वो भी लक था, मतलब वो भी हो गया। Okay. फिर थर्ड सेंटर सैटेलाइट में ऐसा हुआ कि हमें लगा कि उस तरफ से हमारा 60-70% काम आ रहा है। Okay. उस्मानपुरा में सैटेलाइट Okay. तरफ से Okay. उधर के डॉक्टर ज्यादा भेज रहे हैं। तो हमें लगा कि अगर कभी कोई कॉम्पिटिटर ने वहां पे खोल दिया सेंटर, तो हमारा काम बंद हो जाएगा। Okay. तो हमने वहां पे सेंटर खोला, और वही हुआ कि जिस दिन हमने सेंटर खोला उसके 6 महीने के अंदर सैटेलाइट में एक और सेंटर आ गया। तो वी वर लकी, मतलब we were there in time. हाँ, अदरवाइज वो हाँ, अपॉर्चुनिटी चली जाती। अपॉर्चुनिटी चली जाती। तो इस तरह से हम लोग फिर अहमदाबाद के हर एक एरिया में एक एक सेंटर खोलते गए, जहाँ पे कोई सेंटर नहीं था। हमारे खोलने के बाद हर जगह एक एक सेंटर और बन गया। Right. तो बट दैट वाज द वे, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज a city like Ahmedabad has areas like Shahibag, Satellite, Vastrapur, Right. जुआपुरा, ये सारे जो एरियाज है ये अपने आप में एक मेडिकल हब है। Correct. मतलब क्या कि वस्त्रापुर का एक सर्जन होगा, एक ऑर्थोपेडिशियन होगा, एक फिजिशियन होगा, 10-15 जीपीज होंगे, ये सारे वस्त्रापुर के मेडिकल एसोसिएशन बनाएंगे।
तो उनको सर्व करने के लिए एक MRI, एक CT, एक एक्सरे, एक सोनोग्राफी चाहिए होगी। करेक्ट ऐसे हर एरिया में ऐसी जरूरतें हैं, तो वी काइंड ऑफ फाउंड आउट दोज एरियाज एंड वी स्टार्टेड पुटिंग सेंटर्स लाइक दैट। ऑसम सर। इसमें एक चीज मैं इससे पूछूंगा कि सिंस यू आर फ्रॉम ए बनिया फैमिली, ठीक है, आप बनिया फैमिली, आप यू हैव सीन द बिजनेस, यू ऑलरेडी हैव दैट एक्यूमेन, और आप डॉक्टर हुए, उसके बाद भी यू हैव डन MBA फ्रॉम ISB हैदराबाद, विच इज लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट। आप अगर 1 साल का MBA करना चाहते हो, इट्स अ गुड, वेरी नाइस इंस्टीट्यूट। तो आपने क्यों MBA किया? मतलब यू हैड दैट थिंग इन योर थिंग। So anything in my life has a lot of stories behind it. That's what our podcast is all about. क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स MBA की तरफ देखते भी नहीं आफ्टर हैविंग डन MD और MS, उसके बाद फिर वो MBA की तरफ नहीं देखते हैं। सो वो भी एक क्वेश्चन है कि will you suggest people to go for MBA, understand the business side, and why did you did? So I'll first answer the first part, why I did. So when we acquired Usman Bira Imaging, I told you we acquired it from debt. तो वैसे ही नॉर्मल डॉक्टर था, कुछ पता तो चलता नहीं था। एक्यूमेन था, बिजनेस एक्यूमेन, पर उसके समझ नहीं आती। एक्यूमेन अलग बात है, बिजनेस समझ अलग बात है, राइट? तो वो सेंटर शुरू किया, इंस्टॉलमेंट आने शुरू हुए, तो पता चला कि जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा के इंस्टॉलमेंट है। तो फंस गए कि क्या क्या करें। तो फिर धीरे धीरे काम किया, रेवेन्यू बढ़ाया, इंस्टॉलमेंट तो उतना ही रहा, रेवेन्यू बढ़ता रहा, पर कभी भी ऐसा लगता था मजा नहीं आ रहा है, अरे क्या है, जितना पैसा कमा रहे हो तो बैंक ले जा रहे हो। तो बीच में ऐसा हुआ कि माय वाइफ आल्सो वर्क्स विद मी, शी गॉट अ चांस टू गो टू ISB for a women entrepreneur course. And she had been sponsored by Goldman Sachs. Yes. And she went there, and then she started doing the classes. And after every class, she will call me. यार ये प्रोफेसर ने ये पढ़ाया यार, ये तो सही बात बोल रहा है यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है, अब हमने बिजनेस में से अप्लाई क्यों नहीं करते? तो हाँ यार, बात तो सही है, चलो थोड़ा अप्लाई करके देखते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो फिर कुछ क्वेश्चंस आए, यार ये किया अब क्या, तो मतलब तू जाके प्रोफेसर को पूछ यार ये किया आप क्या करने का? तो प्रोफेसर बोले तो बड़े फास्ट हो यार तुम तो, मतलब फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो करते 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 शी गॉट अ फ्लेवर ऑफ यू नो मार्केटिंग किसको बोलते हैं। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मार्केटिंग सेल्स अलग अलग होता है, मतलब तब तक मैक्सिमम डॉक्टर्स को नहीं पता। हाँ, फिर फाइनेंस किसको बोलते हैं, ऑपरेशंस किसको बोलते हैं। Then she told me that Amit, whatever happens, you have to be here. मतलब तू कुछ भी हो जाए, तू यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो you're missing out on big thing. Understood. And then she was the one who kind of pushed me to ISB. She told that you have to be here, and then the next year I was there. So structured business knowledge को लेना और उसको समझना and then implement करना. And then I did the same thing, वो पढ़ा रहा है और हम implement कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो फोन पे implement करवा रहा था। अच्छा अब ये शुरू कर दो, अब ये ऐसे करना ही है। And it happened. I mean, it was a magical move. Yeah, that is one of the मतलब traits that आपको इतना growth, इतना जो चीज है, that is because you are a fast implementer. Your executioner is जो ability है ना, वो बहुत fast है। Otherwise 23 centers इतना time में होना, it's not easy. You used a very important word, growth. grow किया। तो ये grow जब किया, तो what was its top 1 to 3 things जो आपने grow किया, मतलब how did you grow? So I think the top, there was only one thing which made us grow. It was a hunger for growth. मतलब we were like very very hungry for growth. रात को कोई बोलता था कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे पोटेंशियल है, इस जगह पे सेंटर डालो, तो सुबह को हम जगह ढूंढने शुरू कर देते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रात को मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं ड्राइव पे और उस एरिया में स्काउट कर रहे हैं जगह कि ये यहाँ पे सेंटर सही रहेगा, यहाँ पे सेंटर सही रहेगा, यहाँ पे सेंटर सही रहेगा। तो वी हैड दैट काइंड ऑफ मैडनेस। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन कि वी रीच्ड वेयर वी रीच्ड, कि कुछ सोचते नहीं थे। हंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर्स में वी हैव सीन कि डॉक्टर्स आर वेरी सेटिस्फाइड आल्सो। सो वो हंगर मे बी फ्रॉम योर बिजनेस साइड से वो थोड़ा सा आया होगा। But what do you want? Do you suggest doctors को that hunger should be there? Like even if you are not going for money, maybe the number of people you are impacting should have that hunger कि हाँ मैं उतना बड़ा काम कर सकता हूँ। एक छोटा सेटअप बना के अगर मैं satisfied हूँ, वो सही है, या it should be like impactful होना चाहिए, बड़ा काम करना चाहिए? यार देखो दोनों सही है। मेरे को तो ये लगता है, मतलब to be very honest, कि हर एक आदमी की एक पर्सनालिटी होती है। राइट। तुम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करो। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी है ग्रोथ की, तो फिर फोड़ दो, मतलब वो छोड़ो ही मत। और अगर तुम्हारी पर्सनालिटी है ही नहीं ग्रोथ की, तो तुम जो सेटिस्फाइड हो अच्छा ही है, वरना तुम अपने आप को हार्म करो, स्ट्रेस करो, प्रेशर में मत आओ, आसपास को मत देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत जाओ, फोमो में मत जाओ। पर अगर तुम्हारी पर्सनालिटी है तो गो फॉर इट। मतलब
आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं इस तरह से दूंगा कि जिनको ग्रोथ का हंगर है ना, उनको और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, रिस्क लेने चाहिए। फेल होगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर दौड़ोगे, Right. ये होता ही रहेगा। राइट, पर अगर क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन उससे ज्यादा होगा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा। कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को इतना हंगर है, मेरे को ग्रोथ करना है, मेरे को ये करना है। गुड गुड, सो आई कैन गो विद योर सेंस ऑफ राइटनेस, और जो भी आपकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से जाना चाहिए। MBBS करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को रेडियोलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, रेडियोलॉजी तो लेना ही चाहिए। आई थिंक रेडियोलॉजी इज द ओनली ब्रांच जहाँ पे इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ है। मतलब अगर आज की तारीख में, नॉट बिकॉज आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, न्यूट्रली स्पीकिंग, अगर आज की तारीख में कोई एक ब्रांच पेशेंट की और डॉक्टर की दोनों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है तो वो रेडियोलॉजी, और कोई ब्रांच ही नहीं है। मतलब of course radiopatology I can say together, but then radiology is still a bigger impacting branch. Yes, yes. जो पेशेंट को भी इम्पैक्ट करेगी और डॉक्टर को भी इम्पैक्ट करेगी, तो रेडियोलॉजी तो लेना ही चाहिए। Is it still the highest earning branch? Highest earning branch, okay, then we can again see the highest earning branch in two ways. One way is कि averagely अगर एक ब्रांच है तो 100 डॉक्टर कितना कमाते हैं और पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल रेडियोलॉजी में हाईएस्ट है। पर एवरेज तो मेरे ख्याल से हर ब्रांच का सेम ही रहेगा, इतना मतलब रेडियोलॉजी का ज्यादा है या कम, ऐसा नहीं होगा। मतलब सर्जन ही ज्यादा कमाएगा कभी भी किसी से भी। अच्छा सर, आपने जो डिफरेंट ब्रांचेस खोली है ना, तो उसमें कई मॉडल्स होते हैं जब हम लोग करते हैं, एक कंपनी ओन्ड है और कंपनी ऑपरेटेड है। सारे हम लोग वी आर fully owned by you are us. owned and you are operated also. Yeah, So Coco. it's called Coco. Okay, so you all of them. So then the investment also is yours only. Yes. So then how do you raise investment through All the bank? debt funded. All debt funded. And how much debt should one take? 70-80% of the project cost. I think you should take as much low debt as you can. Okay, low debt. हाँ, Okay. मतलब जितना आपकी सिचुएशन परमिट करे आप उतना लो डेट लो, Okay. तो प्रोजेक्ट जल्दी वायबल दिखता है। Okay. डेट कम देना पड़ रहा है, आपको लग रहा है ब्रेक इवन Right. आ गया, Right. बाकी पैसा तो आपका ही आपके घर So में आ रहा है। just run through the process once you acquired or once you start a center of some, लेकिन आपने debt लिया 60-70% या 50%, and then how the repay starts. So वो उसका gestation period कितना होता है? When did you feel कि अब हम पे बैक कर सकते हैं? वो सारी चीजें थोड़ा just run us through that. तो बेसिकली क्या रहता है कि अगर आप तो मैं नॉर्मली रेडियोलॉजी सेंटर्स को 3 मॉडल में डिवाइड करता हूँ। एक मॉडल जिसमें खाली आप सोनोग्राफी एक्सरे कर रहे हो, Okay. एक मॉडल जिसमें आप सोनोग्राफी एक्सरे और सीटी कर रहे हो, और Okay. एक मॉडल जिसमें सोनोग्राफी एक्सरे सीटी एमआरआई कर रहे हो। Okay. इसके अलावा तीनों मॉडल में आप मैमोग्राफी, डेक्सा, ये छोटी छोटी मोडेलिटीज आप Add on कर सकते हो. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू। Correct. तो अगर आप सिर्फ सोनोग्राफी एक्सरे वाला मॉडल करते हो तो सब 1 करोड़ में हो जाता है। आप Okay. सोनोग्राफी एक्सरे सीटी वाला मॉडल करते हो तो सब 2 करोड़ में हो जाता है। Hmm. और सोनोग्राफी एक्सरे सीटी एमआरआई वाला मॉडल करते हो तो अराउंड 7 to 10 करोड़ में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन यू चूज। So the space is rented or the own? So all of our centers, 2 of our centers are owned, all the rest are spaces are Are rented. So that this price जो आप बता रहे हो, this is This is only machinery machinery cost. price. Machinery cost. So once you take a debt, say you took around averagely 60% debt, 40% is your own money. You start paying the debt. So now the banks are giving you 1 year moratorium where they give you a principal moratorium. Interest charge कर लेते हैं, principal आपका दूसरे साल से चार्ज होता है। Correct. तो फर्स्ट मंथ से ही आपको देना है पैसा, तो आपको पहले महीने से देना है। आज आपके खाते में पैसा आया तो आपको नेक्स्ट मंथ से रीपे करना शुरू करना है। Alright. तो नॉर्मली रेडियोलॉजी का मॉडल ऐसा होता है कि आपको पेशेंट पहले दिन से मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहला पेशेंट आने में 1 महीना लगेगा, हाँ. बिकॉज आप कहीं ना कहीं Network अपने ही होता है। डॉक्टर से कनेक्टेड होते हो, Right. आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, आपके जूनियर होते हाँ. हैं, कुछ ना कुछ इकोसिस्टम बना ही होता है। Okay. प्लस आपकी सेल्स मार्केटिंग टीम होती है जो जाके मार्केट में प्राइम करती है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, Right. फिर कुछ सोच के आपने सेंटर खोला होता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ Yes. से नियरेस्ट जो पेशेंट जा रहा है वो 4 किलोमीटर दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर दूर जा रहा है, Correct. तो मैं यहाँ पे आ गया तो 1 किलोमीटर के अंदर पेशेंट को सर्विस मिल गई। Right. तो नॉर्मली मोटा मोटा 2 से 2.5 साल में आपका 3 साल में लगभग आपका ब्रेक इवन आ जाता है। Okay. मतलब 3 साल और 5 साल में आप पूरा डेट रीपे कर पाते हैं। तो मोटा मोटा ये चलता है आपके रेडियोलॉजी के बिजनेस में। Okay. मार्केटिंग और ब्रांडिंग वो एक छोटे सेटअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे बड़ा सेटअप है तो आप क्या करते हो उसके लिए? तो छोटा सेटअप जब होता है तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो सब वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो खुद ही है ब्रांड, वो खुद ही मार्केटिंग कर रहा है। मतलब उसके लिए कुछ
मार्केटिंग ब्रांडिंग शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही ब्रांड एम्बेसडर है। वो जो छोटा सेटअप है, वो जो बोल रहा है, वही डॉक्टर को फोन कर रहा है कि सर आपके पेशेंट में ये निकला, मैंने ये देखा, तो वैसे उसका ब्रांड बन रहा है। उसको कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। पर बड़े सेटअप में बहुत जरूरत है। जैसे अब हमारी 23 ब्रांचेस होगी, तो बिकॉज ऑफ वॉट एवर एक्टिविटीज वी डू ऑन द मार्केटिंग साइड और द ब्रांडिंग साइड, व्हाट हैपेंस इज नाउ द पेशेंट चूजेस अस ओवर द अदर सेंटर्स। राइट मतलब क्या कि कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ए सेंटर पे चले जाओ, राइट पर पेशेंट बोलता नहीं हम तो उस्मानपुर ही जाएंगे। So बिकॉज it- दे हैव दिस ट्रस्ट कि आपने बिल्ड किया है वो। Exactly. So that has a bigger role when you become multiple centers. एक सेंटर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एक चीज़ था, जैसे मैं सोचा था कि आप B2C और B2B की बात करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट में तो ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीथिंग इज B2B और गेटिंग रेफरेंसेस। So और I'll tell you a very good thing about radiology, or a very typical thing about radiology. So what is radiology? So what happens is आपका पेशेंट कब बनता है? जब डॉक्टर लिख के देता है कि आपको MRI करना है, MRI करना है या आपको एक्सरे एक्सरे करना है। करना है। तब तक राइट, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब तब तक तो पेशेंट बोल रहा है कि भाई मैं रेडियोलॉजिस्ट का पेशेंट नहीं हूँ। हाँ, राइट राइट द मोमेंट डॉक्टर ने बोला भाई साहब आप MRI करा लो, तब आपका पेशेंट बना। यस, अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है पेशेंट। Right. अब डॉक्टर बोलता है कि यार आप ना ए सेंटर पे चले जाओ। अब पेशेंट या तो बोलेगा कि यार डॉक्टर ने जो बोला वो कर लूंगा, या तो बोलेगा कि नहीं यार मैं उस्मानपुरा को जानता हूँ, मैं इसका ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, यस, तो मैं इधर जाऊंगा। सही, तो इस तरह से उसकी जर्नी शुरू होती है पेशेंट की। ओके। तो जो B2B या B2C है, मैं ये बोलता हूँ कि रेडियोलॉजी इज ऑल अबाउट 100% B2B2C। हाँ, डॉक्टर लिखेगा तभी तो वो हमारे पास कस्टमर आएगा। करेक्ट सो द जर्नी इज ऑलवेज B2B2C। बट स्टिल यू टू डू मार्केटिंग की वो जो ट्रस्ट है, अगर डॉक्टर भी बोल रहा है लेकिन वो कस्टमर में भी वो ट्रस्ट है कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। हाँ, यानी कस्टमर डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है तब भी वो तो B2B2C है, क्योंकि वो किसी डॉक्टर ने तो लिख के दिया ही होगा राइट उसको। राइट राइट। यानी हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि अगर डॉक्टर ने उसको और कोई सेंटर पे लिख के दिया, वो मेरे पास आ गया, पर वो जब मेरा रेडियोलॉजिस्ट वो फोन तो उसी डॉक्टर को कर रहा है राइट, कि सर आपका एक पेशेंट है, आपने उसको MRI लिख के दिया था, हाँ। बोले आपने उसको कहीं पे भी लिख के दिया था, पर वो हमारे पास आया है, Yes. इसकी ये फाइंडिंग है, इसको नी में ये हुआ है, इसको ये हुआ है। राइट राइट। तो अल्टीमेटली तो वो B2B2C ही हुआ। हाँ। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि रेडियोलॉजी इज 100% B2B2C। आई डोंट से दैट इट इज B2B और B2C, इट इज 100% B2B2C। हाँ, देयर इज सम पार्ट ऑफ द बिजनेस व्हिच यू कैन कॉल एज कॉर्पोरेट लाइंस, कि भाई मैंने किसी कॉर्पोरेट के साथ टाई अप किया हुआ है, वो उसके bulk में पेशेंट है। को कुछ भी होगा तो वो मेरे पास आएगा, हाँ। या जैसे मैंने CGHS के साथ टाई अप किया हुआ है, Okay. तो वो मेरे पास आएगा। Okay. तो वो एक मेरा B2B सेगमेंट अलग हो गया, पर नॉर्मली लार्जली स्पीकिंग रेडियोलॉजी इज B2B2C। 80-20 काइंड ऑफ, ठीक, ओके, ठीक। Now you have a big brand and big presence, but when you are small, from becoming to this stage, आपने डॉक्टर्स को नेटवर्क को कैसे ग्रूम किया या फिर कैसे उनको नर्चर किया कि वो जो आपके patient जूनियर मिले? डॉक्टर वगैरह जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो ग्रो कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विद अस आर ऑन अ पेरोल, ओके, so they keep on coming and going. हाँ, There are few doctors who are there with us from the beginning. Right. So these doctors also grew with us. Right. So they are now, मतलब उनके लिए भी वो जर्नी थी जैसे हमारे लिए जर्नी हाँ, थी। हाँ, तो वो तो सब समझते हैं जो 2-3 डॉक्टर्स हमारे साथ शुरू से हैं कि कैसे ये काम हो रहा है, कैसे ये प्रोफेशन को हमको आगे ले जाना है, कैसे हमको पेशेंट के साथ डील करना है, कैसे डॉक्टर्स के साथ डील करना है। पर जो ये डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास जॉब के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वो सबसे उनको टैकल करना सबसे मुश्किल होता है। बिकॉज वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं तो जॉब करने आया हूँ आपके पास, Right. मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कि भाई मैं 9 से 6 आऊंगा, मुझे 2 लाख रुपए दोगे, 3 लाख रुपए Right. दोगे, मैं ये करूंगा, इतना काम करूंगा। अब प्रोफेशनल्स नॉर्मली दे डोंट, मतलब इन आवर फील्ड व्हाट वी हैव सीन इज दे डोंट रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स मच। तो वो आदमी आएगा, वो ट्राई करेगा कि मैं काम ही ना करूं, वो ट्राई करेगा कि वो 20 पेशेंट आ रहे हैं मैं 5 ही देखूं। So that is a very problematic thing and it's very difficult. They don't understand contracts. We try to change the contracts. We try to mention the quantity of work they have to do. We try to mention the hours of work they have to do. अच्छा, But still they don't respect it. And then, there's so many things. जब वो बंदे को करना ही नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, मतलब अगर इंटेंशन ही नहीं we है। tried to give them more money. हाँ. We said कि आपका मार्केट में रेट 2 लाख चल रहा है, आप हमसे 2.5 लाख ले लो, करेक्ट, पर आप काम ज्यादा करो, Correct. तो they will not do. So इंसेंटिव स्ट्रक्चर ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया, माइंडसेट प्रॉब्लम। माइंडसेट, हाँ, तो बहुत कुछ ट्राई किया हम लोगों ने, पर दैट इज वन चैलेंज व्हिच वी आर स्टिल फेसिंग एंड व्हिच एवरी रेडियोलॉजी सेंटर इज फेसिंग। इट्स नॉट ओनली बट इवन योर ब्रांड इज सो ह्यूज एंड पीपल नोस, तो वहां पे तो उन लोगों को मतलब काम करना चाहिए और अपना बिल्ड करना चाहिए करियर। बिकॉज समवन कम्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, 6 महीने के लिए आया, 1 साल के लिए आया, वो मेरे ब्रांड को ओन ही नहीं कर पाता उतने टाइम में। करेक्ट। तो मेरे जो ब्रांड के लिए ओनरशिप आनी चाहिए, हाँ. वो उसको नहीं आती है। तो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते? 3 नहीं, हम साल बना सकते हैं, पर वो नहीं चाहता।
आज कोई भी कमिट नहीं करना चाहता। हम्म। जो बंदा बाहर निकल रहा है वो बोलता है सर मेरे को पता नहीं है 2 साल के बाद मैं कहीं कहाँ अपने पे गाँव में होगा? जाके खोल लूंगा, हाँ। कहीं मैं और कुछ करूंगा, मेरा सर मन हो गया मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सीखने चले जाऊंगा, कुछ आगे पढ़ने चले जाऊंगा। सही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आके बोलते हैं सर मेरी वाइफ सेटल्ड नहीं है, अब उसका कुछ होगा तो मेरे को वहां जाना Yes, पड़ेगा। yes, yes. देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू गेट समवन हु इज सेटल्ड। Settled and yeah, good. एक थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछता हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं AI इन रेडियोलॉजी इट इज़ गोइंग टू टेक ओवर एंड फ्यूचर ऑफ रेडियोलॉजी इज नॉट वेरी ब्राइट, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आई थिंक एआई का ऐसा बहुत वो चल रहा है कि हम सबसे पहली जो ब्रांच इफेक्ट होगी वो रेडियोलॉजी होगी। So we are working a lot with AI on radiology. Huh. We also invested in a startup where Yeah, I know. the startup was AI in radiology. Correct. जो AI है रेडियोलॉजी में वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो मिस्टेक्स है उसको कम कर रहा है रेडियोलॉजी में, Okay. और जो डायग्नोसिस है उसको फास्टर कर रहा है। Hmm. तो मतलब इट इज अ बून टू द फैकल्टी एज सच ना, पूरा ब्रांच के लिए इतना बड़ी बात Correct. होगी। Correct. आज क्या है, आज जो रेडियोलॉजिस्ट की करेक्टनेस है, हाँ. मतलब कि आप जो Efficiency और effectiveness जो आप बोल रहे हो। जो वर्ल्ड वाइड करेक्टनेस ऑफ रेडियोलॉजी है ना, हाँ. दैट इज सब 50%। Okay. Okay. मतलब आपके पास जो भी रेडियोलॉजी की रिपोर्ट आएगी 50% से कम रिपोर्ट सही होती है, Hmm. मतलब इज अ बिग नंबर। Yeah. और वो सही बहुत सारे कारणों से वो गलत होती है report। Yes, yes, मतलब yes. इट्स नॉट, हाँ तो आप सबको लगता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि रेडियोलॉजिस्ट को आता ही नहीं है। नहीं ह्यूमन एरर है, then there is a हाँ, experience हाँ, तो experience error है। There could be an error right from the registration of the patient Correct. to the report dispatching of the patient। मतलब क्या कि आपकी रिपोर्ट है और प्रणव की रिपोर्ट है, उसने दी तब एक्सचेंज कर दी रिपोर्ट, हाँ। मतलब नाम आपका ही लिखा है, वो प्रणव को दी तो प्रणव ने यार अमित की रिपोर्ट है मेरे पास तो, पर एक्सचेंज तो हो गई ना, उनके कंसल्टिंग डॉक्टर ने वही सोच के ट्रीट कर दिया, Yeah. तो फंस गए। तो देयर आर सो मेनी एरर्स इन रेडियोलॉजी, And technician error है। Yeah. तो 50% से ज्यादा है वो। तो बिकॉज ऑफ एआई एंड यू अप्लाई एआई एट एवरी स्टेप्स, दोज एरर्स आर रिड्यूसिंग। Hmm. तो एक्चुअली सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो रेडियोलॉजिस्ट को ही होगा, रिवैम्प हो जाएगी ब्रांच, है रिवैम्प हो जाएगी। Revamp हो जाएगी। रिवैम्प हो जाएगा। So sir, एक चीज, will radiologists will be replaced by AI anytime near in future? AI will not sign the reports, right? Radiologist has to sign the reports. Correct. So it cannot be replaced. Okay. तो हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था, अभी हमने AI जो स्टार्टअप था उसमें हाँ. हमने AI की रिपोर्ट्स देना शुरू किया हाँ। कि सर हमारी रिपोर्ट्स 95% एक्यूरेट है, हाँ. हम आपको डेटा दे देते हैं Right. एंड यू हैव टू बिलीव इट, एंड दे Right. सेड यस आपकी बात सही है। Hmm. तो मैंने बोला सर आपके रात को जो भी सीटी के केसेस आते हैं, हमारे के केसेस आते हैं, ट्रॉमा हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, सही है। इनफैक्ट हो रहा है, आप हमारा AI लगाओ। सही है। तो उन्होंने लगाया 10 दिन 15 दिन 20 दिन, रिपोर्ट्स उन्होंने इशू करना भी शुरू कर दिया डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स वेरी हैप्पी, यार सही रिपोर्ट है ये वो, अगले दिन आके रेडियोलॉजिस्ट ने वैलिडेट भी किया कि रिपोर्ट सही है। ठीक है। अब 1 महीने के बाद प्रॉब्लम नहीं आनी शुरू हुई कि सर एक काम करो, रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट है ना, रेडियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सही। कि क्या कल कुछ मेरे को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे आप पूछ रहे हो। तो रेडियोलॉजिस्ट आके बोलता है कि सर एक काम करो, ये रिपोर्ट में साइन नहीं करूंगा। हाँ। तो बोले भाई तू साइन क्यों नहीं करेगा? तो बोले सर मैंने थोड़ी रिपोर्ट करी है, ये तो एआई ने करी है, आप एआई से साइन कराओ। ठीक है। तो कंसल्टेंट बोलता है यार ये अगर रिपोर्ट साइन नहीं करेगा तो मैं, मतलब वो पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट वैलिड नहीं है, तो मतलब लीगली पूरा सिस्टम गलत हो गया ना। करेक्ट, बट वो तो पढ़ के वो दूसरी बार देख नहीं रहा है, मतलब हाँ, एआई को तो- देख, एआई ओके गिविंग डायरेक्शन। डॉक्टर बोल रहे हैं ना वो मैं नहीं करूंगा, मतलब अब नहीं, अब मैं तो दूसरी बार दूंगा, मतलब तो डॉक्टर बोलेगा तो मैंने वो ट्रीटमेंट तो तब कर दी, हाँ। मैंने रात को 10:20 की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू करी, ठीक। पर रेडियोलॉजिस्ट साइन कर रहा है सुबह को 11 बजे, ओके। तो दैट इज रॉन्ग ना, मतलब Okay. आप लीगली तो गलत हो गए, आप कैसे कर सकते हो ट्रीटमेंट? इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। So those were the issues, and then we try to make the doctors understand that you get more money, you are not even there, reporting is happening. बोले नहीं हम ये सब रिस्क नहीं लेंगे, ये वो, तो मतलब ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल इंटरव्यू, Government, वही। they will tell us a way, they'll give us a window, Once it is a हाँ, तो regulation is easily made. पर बहुत फायदा है। जैसे आप ये देखो, there are startups of radiology where they do chest x-rays, Yes. तो वो लोग एक दिन में 20-20 हजार चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई आदमी नहीं कर सकता। तो उससे अच्छा क्या चाहिए, और एक्यूरेसी मोर देन ह्यूमन बीइंग्स। यस यस। तो मेरे को लगता है ये सब बून है, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा रेडियोलॉजी में, मतलब आई थिंक दिस विल बी अ नेक्स्ट लेवल, एटलीस्ट द ब्रांच विल हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी कि यार चलो इनके बाद आए, कुछ गलत नहीं कर सकते क्योंकि एआई भी लगा हुआ है। एआई भी लगा हुआ है, हाँ हाँ। तो सर एक नेक्स्ट कमिंग टू इन एआई ओनली टेली रेडियोलॉजी which is also a very upcoming thing. How do you see the future of tele radiology? So teleradiology means that आपने एक जगह पे स्कैन किया और आपका रेडियोलॉजिस्ट एक और जगह पे बैठा हुआ है। ठीक। अभी भी वैसा ही हो रहा है, आपका स्कैन तो एक रूम में चल रहा है, रेडियोलॉजिस्ट अलग रूम में बैठा हुआ है। ठीक ठीक। तो वो डिस्टेंस 2 मीटर है या 2 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर है, क्या मतलब फर्क दैट नहीं इज है। टेलीरेडियोलॉजी। हाँ हाँ।
So basically, teleradiology combined with AI, without AI, both are booming like anything. Okay. So teleradiology is basically क्या है कि अब रेडियोलॉजिस्ट इतने नहीं है कि हम हर जगह रेडियोलॉजिस्ट रख सके या हर जगह रेडियोलॉजिस्ट Sure. पहुंच सके. हाँ. जो रेडियोलॉजिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अनइवन है. Hmm. पूरे वर्ल्ड के 50% रेडियोलॉजिस्ट अमेरिका में बैठे हैं. Okay. हाँ, और 50% बाकी पूरे वर्ल्ड में है. Mm-hmm. तो इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जबकि रेडियोलॉजिस्ट वहाँ तो इतनी पॉपुलेशन मतलब पर पॉपुलेशन रेडियोलॉजी पर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है वहाँ बहुत पे. ज्यादा. सो दैट मीन्स इंडिया में बहुत स्कोप है अभी. हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है. तो टेलीरेडियोलॉजी इज अ बूमिंग ब्रांच. Teleradiology will also see in future, and it's happening now as we are speaking, a lot of legal reforms. या दैट इज नीडेड ना. पहले टेली हेल्थ भी था, अभी अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं, दैट वाज नॉट बिफोर कोविड. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट इनटू और कॉल एंड डू द टेली मेडिसिन, बट अभी इट इज नाउ बिकमिंग नॉर्म. So teleradiology is going through legal reforms, and it will happen. But it's again one of the very fantastic things of radiology. Fantastic. Great. So you have grown this much in this, acquiring so many hospitals. Do you remember some of the unique incidents where you thought that we are not going right and then eventually it became right decision for you? So every time it happens, when you kind of you want to acquire something, you think that वो नहीं चला पा रहा है, मैं कैसे चला लूंगा, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए. एंड देन सडनली यू सडनली गेट एन आइडिया, अरे यार इसने ये तो मिस कर दिया, ये तो इसने किया ही नहीं, अगर ये किया होता तो चल जाता. राइट. एंड हर जगह जहां पर भी हमने एक्वायर किया सेंटर, हमने हर जगह यही फाइंड आउट किया कि उस थॉट की वजह से हमने उसको एक्वायर कर लिया, पर वो चलता ही नहीं है. वो थॉट एक भी जगह नहीं चला. मतलब मेरे को लगा एक सेंटर हमने एक्वायर किया उधर, मेरे को लगा कि यार ये तो रात को काम ही नहीं करते, 7 बजे के सेंटर बंद कर देते हैं. तो मैंने बोला कि हमने तो हमारे सेंटर्स का एवरेज निकाला है, तो हमारा 20% काम, 20 से 25% काम रात को 7 बजे के बाद ही होता है. ओके. तो बोला 25% इसका रेवेन्यू बढ़ गया, तो ये तो मस्त हो गया, और क्या चाहिए. तो हमने बोला ये तो हम बढ़ा लेंगे, पर वो बढ़ा ही नहीं. मतलब क्योंकि वो सेटअप ही ऐसा था ना, मतलब वो नहीं चलने वाला था, तभी तो वो नहीं चला पाया. उसको भी आइडिया तो आया ही होगा. राइट. पर जो एक्वायर करते हैं ना, उसको अर्थ में लिखते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुपर हूँ, मेरे को ज्यादा आता है. वो ये भूल जाता है कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है. तो मतलब आई हैव अ वेरी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड. मतलब अगर मैं जिस सेंटर को एक्वायर करने आता हूँ ना, मैं उसकी सारी बातें सुनता हूँ और वो ध्यान से सुनता हूँ. एग्जीक्यूशनर वाला जो बंदा है, जो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो सही बोलता है. उसकी बात आप नकार नहीं सकते. तो फिर उससे जाके पूछता हूँ कि मेरे बाप, तू मेरे को बता कि कैसे चल सकता है, क्या प्रॉब्लम है, ये बता कि मैं क्या कर सकता हूँ जो तू नहीं कर पाया. करेक्ट. अगर वो नहीं बोल पाता ना कि मैं क्या कर सकता हूँ जो तू नहीं कर पाया, तो मैं एक्वायर नहीं करता. मैं मना कर देता, यार इससे नहीं हो रहा, मेरे से भी नहीं होगा. मतलब मेरे पास, और ये तो यहाँ बैठा है, मैं तो दूर बैठ के चलाने वाला हूँ. यस. तो ये तो ग्राउंड पे बैठा हुआ है. तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. When you are not in your routine business and radiology, what are your hobbies? What do you do? As such hobbies, I like to play badminton. I was a national badminton player. Okay. I represented India in international. अरे वाह. Okay. I do reading books. तो as such कोई खास हॉबीज नहीं है, क्योंकि बिजनेस के बाद हॉबीज के लिए कोई टाइम नहीं बचता है. नहीं, जो आपकी हंगर उसके बाद कोई हाँ, जरूरत उसके लिए कोई टाइम नहीं बचता है. पर मतलब आई वुड reframe the answer saying that अगर मुझे कोई हॉबी के लिए टाइम मिलता तो मैं बैडमिंटन खेलता अपने हॉबीज के लिए. मैं बुक्स पढ़ता. And one of the hobbies which I have now kind of cultivated with whatever I am doing is I try and help startups. Okay. I don't charge anything from them, but if I get a chance, I mentor them. Okay. I help them. I help them understand what they're trying to do, why they are doing what they're doing, what they should not do, strategy. तो बहुत कुछ, मतलब ऐसे I am now, as we're speaking, I'm mentoring almost 7-8 startups. Wow. Okay. So, but that's just a part of our hobby. Yes. Very nice. That brings me to another question, that you have multiple sources of income. And is multiple source of income, every doctor should be planning, or he should focus on that? I think I don't have multiple sources of income. I have only radiology as a source of But income. you have might have invested in the real estate or mutual funds or stocks. नहीं, तो I don't have a demat account. Okay. We are going to get an IPO. तो कल ही my accounts team was after me to open a demat account. Okay. So you're planning for an IPO? हाँ, we are planning for an IPO. Awesome, So awesome. almost done. I think this next week we will file a DRHP. Okay. तो MSME IPO or it's a proper? it's a SME IPO. MSME. Okay. So I don't have multiple sources of income. I have all my eggs in one basket, which is wrong. Actually, I don't advocate that. But as a doctor, you should have multiple
sources of income, multiple streams of income, and today's world where you Yeah. have everything being accessed on mobile. Right. I'm sure you should have a lot of this thing. So I have a daughter who's 18 years old. We have already advised her, and we tell her that you start an SIP, you start investing, you start understanding what investment means. Yeah. So I think everyone should have a lot of sources of income, whatever they can do. Yes. True. Depending upon how your mindset is, you can choose real estate, you can choose shares, you can choose SIPs or whatever, mutual funds or whatever. But you should have a lot of sources of income. So another thing we can discuss is about कुछ इसमें customer के लिए कुछ होता है क्या? मतलब we can ask you about normal people. जैसे हम गैस्ट्रो डॉक्टर बुलाते हैं तो उनका सीधे पेट के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. That is truly directly for a normal population. Radiologist में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि डॉक्टर से डॉक्टर ही बोल रहा है, डॉक्टर ही बोल रहा है, तो कोई B2C तो जाता नहीं अपना एक्सरे कराने. आज टेस्ट फिर भी हो गए, ब्लड टेस्ट फिर भी लोग, मैं तो फिर भी 3-4 बार ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ, फुल बॉडी टेस्ट करा लेता हूँ, वो सब करा लेता हूँ. बट रेडियोलॉजिस्ट इज समथिंग व्हिच ओनली डॉक्टर ड्रिवन. ओके, ठीक है. So your hobby, one of your hobbies, you said that it is reading. So which is your favorite book? There's no favorite book, but I only read business books. Yes. I read finance, I read strategy. ओके. I would read anything which is related to business. So, favorite book जैसा कुछ भी नहीं है. मतलब I think every book is different. Every book has a different message. Every author is different. But I love to understand वो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं. उसका मतलब I really appreciate what they do. मतलब किक वहां से मिलता है. मतलब वो जो कंटेंट दे रहा है उससे किक नहीं मिल रहा मेरे को. कंटेंट उससे किक उससे मिल रहा है कि वो कैसे सोच रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसने क्या क्या देखा है लाइफ में. करेक्ट. वो दैट इज मतलब दैट if you look at a book from that perspective, you always feel excited about what you're reading. Yes. You really start feeling a lot of respect for the writer कि यार सही बंदा है भाई, क्या क्या देखा है उसने, यार क्या क्या रिसर्च किया है. बहुत सारे ऑथर्स होते हैं वो प्रीवियस 50 साल पुराना कोरिलेट करते हैं. हाँ, कि 50 साल पहले ना स्टॉक मार्केट में ऐसा हुआ था, पैटर्न्स को. हाँ पैटर्न्स बता रहा है, ये बता रहा है. तो लगता है यार भाई ये तो जबरदस्त बंदा है. मतलब इतना रिसर्च कर रहा है, आज से कोरिलेट कर रहा है, फिर बता रहा है कि ये पूरा सेम ही है. हाँ, हर बार यही हो रहा है तुम्हारे True. मार्केट में या कहीं पे भी. साइकिल है. तो देन यू साइकिल है. Yes, देन यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट ऑथर. एंड देन यू लाइक यार इस ऑथर की और बताओ कौन सी बुक्स है भाई, इसको पढ़ूंगा मैं. वो देखते हो डॉक्यूमेंट्री या नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज? नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज बहुत कम देखता हूं. एनी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज वगैरह कुछ? मैं आई एम वेरी सो फ्रॉम द चाइल्डहुड आई एम वेरी फिल्मी. हाँ. मतलब मुझे फिल्म्स देखना अच्छा लगता है, बिना सर पैर की फिल्म्स देखना अच्छा लगता है. हाँ. तो मुझे बॉलीवुड टाइप. बॉलीवुड टाइप मतलब मिथुन चक्रवर्ती अच्छा लगेगा, साउथ इंडियन अच्छा लगेगा. तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकता मैं. मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है. तो मैं पढ़ सकता हूँ कुछ में भी, किसी भी, मतलब दैट इज माय पर्सनालिटी. अगर मेरे को कुछ भी दिमाग लगाना है तो मैं पढ़ूंगा. क्योंकि बिजनेस की डॉक्यूमेंट्री भी काफी होती हैं, या सीरीज भी होती हैं, मूवीज भी होती हैं, व्हिच आई आल्सो लाइक. पर मैंने एक दो बार ट्राई की. वो विजय माल्या पे कोई डॉक्यूमेंट्री थी. वो मतलब अगर आप ऐसे फाउंडर पे स्पेसिफिक आप देखोगे कुछ जो सीरीज हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एक तो मैकडी पर है फाउंडर्स करके. तो फाउंडर्स इज लाइक ऑसम. देन देयर इज अनदर वेब सीरीज ऑन उबर स्टोरी. ओके, देन देयर इज दिस प्लेलिस्ट. सो प्लेलिस्ट इज ऑन स्पॉटिफाई. सो वो ये सारी चीजें आप देखोगे ना तो यू विल हैव गूज़बम्प्स बिकॉज़ एज अ बिजनेस फाउंडर आई ट्राइड वॉचिंग ऑल दैट. पर वो एक आध एपिसोड के वो बोरिंग हो जाता था, मैं नहीं देख पाता. तो मतलब दैट इज अ प्रॉब्लम विद मी. सो अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये स्पॉटिफाई के फाउंडर का पढ़ ले तो मैं पढ़ लूंगा. पढ़ लोगे. तो और मेरे को पढ़ने के लिए भी एक पेन और पेपर चाहिए होता है. हाँ, मेक नोट्स. कीप ऑन राइटिंग समथिंग. राइट. नोट्स तो नहीं, पर आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट. दैट आइडिया जो जनरेट हुआ आपका. राइट. तो मुझे लगता है वो एमबीबीएस से वैसी आदत पड़ गई है. तो हम लोग वो बुक देखा तो लिखने लगे. नहीं, हम लोग वो मजाक करते थे. तो जब एग्जाम का टाइम आता था ना, तो ऐसे हॉस्टल में एक लॉबी में एक रूम में न्यूज़पेपर आता था, क्योंकि सब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो सब उसमें कंट्रीब्यूट कर लेते थे. तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था ना कोई, तो बोले तू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है? तो बोले सर क्या हो गया? तो बोले तेरी एग्जाम है. तो बोले हाँ. तो बोले देख तू न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो याद होना शुरू हो जाएगा. दैट इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन कि जो भी पढ़ोगे वो याद होना शुरू हो जाएगा. तो बोले अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, जब एग्जाम है तो मुझे तब पढ़ना है. माइंड स्पेस बढ़ जाएगी. तो वो
मतलब वो आदत वैसी पड़ गई है, तो अब Yes. कुछ भी एब्जॉर्ब करना है तो पढ़ना है, और कुछ भी फन करना है तो देखना है। हाँ, तो Any Bollywood last movie that you liked or I don't remember. I watched महारानी करके एक सीरियल है, हाँ which is on Bihar politics. हाँ वो I like politics. Sony Live पे है। हाँ, Sony Live पे। हाँ। So that is what I watched last. Very nice. It's very nice. Very nice. Yeah. Bihar politics. Yes, एकदम, yes. You can feel Bihar politics so closely. Correct. It is so good. Tell me something about your family life, about your wife and children. So, Dr. Aradhana, my wife is a pathologist. She also went through ISB for the Women Entrepreneur course. And we have 2 kids. Divyanshi, the elder kid, just got admission in Baroda Medical College. And the younger one is 10 years old. Okay. So he's a cricket fan. And there's so much to speak about him. So, so this generation, they are so much into something and they take it so seriously. तो आज वो स्कूल नहीं गया क्योंकि आज इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच था। लाइक इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच वो भी कौन देखता है? वो भी आजकल आज की जनरेशन देख रही है तो वही बहुत he follows every ball. Okay. And he tells me that Bumrah took 5 wickets today. And he told me कि उसने कैसे कैसे विकेट लिया। मतलब वो बताएगा कि 2 बोल्ड हुए, 2 कैच आउट हुए, एक एलबीडब्ल्यू हुआ। फिर वो ये भी बताएगा कि जो बंदा था जो एलबीडब्ल्यू हुआ उसने बैट ऐसे नहीं ऐसे टर्न करना था तो एलबीडब्ल्यू नहीं होता। पैशन। हाँ, and I was like, अच्छा ऐसा भी होता है? मतलब I cannot even imagine what he is feeling. And he plays cricket, so he is in his school's team. तो yesterday and he goes for the coaching also. तो कोचिंग में मैच था कल उसका। Okay. तो मैच में से मेरे को फोन कर रहा है, मैं मेरे सर के मोबाइल से फोन कर रहा हूँ, क्या हो गया? बोले मैंने 5 विकेट लिए अभी। लाइक ओके, या उसके लिए अचीवमेंट है भाई। हाँ मतलब या सर इन दिस जर्नी ऐसे एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी वेरी लोनली जर्नी। ऐसा तो लोग नहीं होते हैं, 10 लोग आपको मिले हैं उसमें, तो हमेशा कई बार बहुत डार्क पीरियड भी रहता है, लो पीरियड्स भी रहते हैं। सो आपका कुछ ऐसा कोई ऐसी जर्नी में लो पीरियड्स रहे हैं और वहाँ से आप कैसे कम बैक किया? सो अमित, लो पीरियड्स तो होते हैं, लो पीरियड्स होते ही रहेंगे। मतलब एंटरप्रेन्योर मैं कैसे डिफाइन करता हूँ एंटरप्रेन्योर जर्नी को, कि जैसे मुझसे स्टार्टअप्स पूछते हैं कि सर आप एंटरप्रेन्योर में कितना मजा आता होगा, कितना एक्साइटिंग होता होगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक्साइटिंग का तो पता नहीं, पर कैसा होता है कि जब तुम सुबह घर से निकलते हो, जैसे मैं, एंड इट इज रियल, इट इज नॉट लाइक मैं शब्द बना रहा हूँ, करेक्ट, कि मुझे नहीं पता कि आज मुझे कौन सी एग्जाम लिखनी है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, म्युनिसिपलिटी में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना पड़ेगा, कोई 2 पेशेंट का झगड़ा होगा या मेरे फ्रंट डेस्क का पेशेंट के साथ झगड़ा होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या कोई रिलेटिव को देखना पड़ेगा। यू डोंट नो, मतलब क्या होने वाला नहीं पता। सुबह निकलते हो एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी। मतलब बिकॉज अब तुमने पुलिस की तो पढ़ाई नहीं की ना, तुमको तो पता ही नहीं है कि पुलिस स्टेशन में गए तो तुमको उसको टैकल कैसे करना है। यस या तो तुम डर जाते हो कि साहब आप बोलो वो सब सही है, आप जैसे बोलोगे वैसा, या तो तुम एग्रेसिव हो जाते हो, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। अब बीच का रास्ता तो आपको पता ही नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट जर्नी है। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। So I think it's more about working on your mindset rather than because you will लो तो रोज आता है। yes. क्यों लो आता है? क्योंकि आपने बोला कि मेरे को ये 3 सेंटर पे 50 लाख का धंधा करना है, ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया, अब धंधा हो रहा है 30 लाख का, क्या करोगे? yes. मतलब लो तो रोज आएगा। आपने एक बंदे को आप लेकर आए कि ये रॉकस्टार है यार, प्रणव ने मेरे को रेफरेंस दिया था, ये रॉकस्टार, इसको हायर कर ले। आपने 5 लाख रुपए सैलरी देके पर मंथ उसको हायर कर लिया, अब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, उससे अच्छा तो पहला वाला बंदा था, क्या कर सकते हो? एंड देन you don't blame Pranav because he has given you a rock star. So then you kind of find out that actually मैंने इसके साथ काम कम किया, मैंने इसको मेंटोर कम किया, मुझे उसको और सिखाना है, मैंने उसको और सिखाया होता तो वो आउट परफॉर्म करता, एंड देन every time it happens. So an entrepreneur's job is more of a mentoring everyone every time all the time. तो वो लो तो आएगा ही, लो का आप कुछ कर नहीं सकते, लो में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस जर्नी में किसी को पता ही नहीं कि क्या, मतलब जैसे डॉक्टर है तो इजी हो गया ना, डॉक्टर है सर्जरी की, साहब दर्द हो रहा है तो बोले ठीक है मेडिसिन दे दो, या इस वजह से दर्द हो रहा है, स्टिचेस पे दर्द हो रहा है, तो समवन हु इज टेलिंग यू कि क्यों हो रहा है। एंटरप्रेन्योर जर्नी में तो आपको कोई बता ही नहीं पा रहा है कि क्यों हो रहा है, आपको तो खुद ही फाइंड आउट करना है, खुद ही डायग्नोसिस, खुद ही तुक्का मारते रहना है। और 5 बार आपने डायग्नोसिस किया, उस ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते हो, यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो लूट जाऊंगा, मैं तो ये हो जाएगा, मैं तो वो हो जाएगा। एंड देन you have to keep a smiling face in front of your family. You cannot tell your family कि
you have messed up, you have goofed up. करेक्ट मतलब तुम अपने बच्चों के लिए तो हीरो, अपने Yes. स्टाफ के लिए तुम हीरो, राइट अब राइट तुम ऐसा बोलो मैंने goof up कर दिया तो उन्हें लगा, कैसे क्या करा? है? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि laws are there, you are alone is a right statement, but then you have to, so okay, how did you come out, like yeah, हाँ, so what I is the did- mindset that you so what I use? did is mindset को तो strong बनाना पड़ता है, हर समय ये सोचना पड़ता है कि कल नया दिन होगा, Hmm. but what I did in this journey is I started making entrepreneur friends. Okay. I kind of started interacting with a lot of organizations like Icha is one of Right, them. right. So a lot of networks Right. where you get people like-minded because they are all in the same boat. So Doing the the same community of like-minded people. Community of like-minded people, and then you kind of don't tell them that मैंने goof up कर दिया, but then you tell them that ऐसा problem आ रहा है यार business में, तू कैसे handle करेगा? Right. या तो वो बोलेगा यार मेरे को भी ऐसा आया, मैंने ऐसे handle किया, या तो कुछ ज्ञान देगा, Hmm. Right. ज्ञान पसंद है तो लो, नहीं पसंद है तो उसको रिजेक्ट कर Yes, दो। yes, yes. पर 90% टाइम ऐसा होता है कुछ ना कुछ हेल्प आ जाती है। Yes. जैसे I'll tell you one example. We're supposed to do an IPO. हाँ. तो I just presented in front of 10-15 people कि यार हम लोग IPO करने का सोच रहे हैं। तो सामने से ही 10 लोगों ने बोला ये ध्यान दिया, बोला, यार ये तो मेरे को पता ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है। हाँ. तो बोला कि तेरा मल्टीपल कितना आ रहा है? तो बोला वो तो मर्चेंट बैंकर ने बोला, उन्होंने मल्टीपल मान लिया, उसने बोला मैं बोलूंगा वही मल्टीपल है। हाँ. तो बोला ऐसा नहीं होता है, तुम 3 मर्चेंट बैंकर से बात करो, तीनों को आपस Average में लो। वो करो और Hmm. तुम बोलो मेरे को ये अच्छा मल्टीपल दे रहा है, मैं इस मर्चेंट बैंकर के साथ Correct. जाऊंगा। बोला, मैं तो वैसे सोचा ही नहीं, Correct. मेरे को तो जो पहला मर्चेंट बैंकर दिखा अच्छा दिखा, मैं उसके साथ चला गया। Yes, yes, yes. तो ऐसी सब चीजें बाद में पता चलती हैं जब तुम लाइक माइंडेड लोगों से बात करते हो, जो जिनको नॉलेज होती है वो बताते हैं, Hmm. क्योंकि अलोन होते हैं ना, तुम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। Yes, yes. वो बहुत important है, ऐसा having a good circle of friends जहाँ पे आप as it is said ना, you are an average of 5 people surround Five you. people surround. So वही है कहानी. You are mentoring a lot of startups, you said. So how do you decide which startup to invest in or which startup to guide? Is there any screening method? आइडिया मत बताइएगा. एक चीज आपको क्या अच्छी लगती है जिसमें आप स्टार्टअप में बोलते हो हाँ चलो इनको मैं हेल्प करता हूँ. मैंने आज तक हर एक स्टार्टअप में एक ही चीज देखी, अगर वो अच्छे रेफरेंस से आ रहा है मैं उसको हेल्प कर देता हूँ, वो कैसा भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. अगर अमित ने बोल दिया यार ये मेरा फ्रेंड है या आपको इसको अच्छा है तो मैं कर दूंगा। तो ओके. सो रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट. रेफरेंस इज द ओनली थिंग। अगर वो रेफरेंस से नहीं आया ना तो मैं नहीं करूंगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा। ओके. मैं तो ऐसा देखता हूँ, अगर मेरे लिए अगर कोई स्टार्टअप आता है जो कि वी ऑल्सो डू मेंटरिंग एंड वी ऑल्सो इन्वेस्ट ऑल्सो इन स्टार्टअप, तो हम लोग जो स्टार्टअप में मैं स्पेशली देखता हूँ कि द फाउंडर इज फ्लेक्सिबल इनफ टू लर्न, ओपन इनफ टू लर्न. That is when you invest. हाँ. I am talking about startups, I am mentoring. इवन दैट इन्वेस्टमेंट इज फॉर योर टाइम. मैं इसमें टाइम देना सर आपका. टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So exactly, but जब आपने मेरे को रेफरेंस दिया किसी का, आपने बोला कि भाई स्टार्टअप को मेंटर करना है, then I am taking it with responsibility. So that is my network. So you now know that I am investing time because of you. हाँ. So that is a different that is a that is different how I think. yeah. So Understood. then next time you will always have that in mind that Correct. अमित ने मेरे लिए 15 घंटे Correct. दिए, 20 घंटे दिए, Correct. तो he valued my reference so much. Yes. So Yeah, that is a different that is the network I different network. create. Yeah, I understood. Yeah. Given that is also a good point. अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट में एज अ फिलोसफी आई विल ओनली इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स Okay. एंड इफ आई कैन पर्सनली कनेक्ट विद दैट स्टार्टअप कि भाई मुझे लगता है एआई एंड रेडियोलॉजी, हाँ ठीक है, मतलब मेरा ही डोमेन है, इसमें जिस डालो domain पैसा, में, हाँ, हाँ, डूब जाएगा तो भी चलेगा, पर ये डोमेन मेरा है, तो ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। Okay. Awesome. Sir, जैसे आप ग्रो कर रहे हो एंड आई हैव सीन योर ईगरनेस टू लर्न समथिंग, डू थिंग्स, तो आप ग्रो करते रहते हो एज फ्रॉम योर MBBS डेज टू MD टू अभी. और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो वहीं पे स्टक हो जाते हैं. ये आपके बैच में भी होंगे ऐसे लोग, और आप जब बात करते हो तो आज जब बात करते हो तो आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते हो, जबकि आप कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड रहे होंगे. सो हाउ डू यू सी दैट थिंग, और वो लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा रहता है, खराब रहता है, एंड हाउ डू यू आर यू एबल टू रिकनेक्ट विद देम, और या आप एफर्ट डालते हो उसको रिकनेक्शन में? मुझे लगता है कि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ, आप जो बोल रहे हो वो मैं देखता हूँ, मतलब आई कैन सी इट विद सो मेनी पीपल, बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि जब मैं MBBS में था ना, तो मेरे साथ जो फ्रेंड्स बने थे मेरे, वो सारे खुरापाती लोग थे, मेरी तरह ही थे, मतलब वो सीधा नहीं सोचते थे, वो कुछ उल्टा ही सोचते थे, So they are also मतलब दुनिया grow- के लिए, हाँ, तो दे ऑल्सो ग्रो इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। Okay. मतलब जरूरी नहीं है कि कोई एंटरप्रेनर ही बन गए, नहीं, कोई जरूरी सब नहीं। करोड़पति बन गए। Intellectually पर मैं वो बोल रहा जो- हूँ। हाँ, वो जहाँ जो ग्रो किया ना उन्होंने, वो हाँ। अलग लेवल पे आज वो लोग। हाँ. तो मैं आज भी उनके साथ उतना ही कनेक्ट कर पाता हूँ, Okay. और हमारी जो फ्रेंडशिप रही हर समय वो ये रही कि एक ना वो होता है कि टांग खींचना होता है एक दूसरे को। वही तो दोस्ती है. हाँ, तो वो जो टांग खींचते थे ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ खींचते थे। हाँ. मतलब
अगर आप मेरी टांग खींच रहे हो, आप मेरे फ्रेंड हो ना, तो प्रणव को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? मतलब वो चल रहा है बस, पर प्रणव बोल रहे हैं हो क्या रहा है, मतलब क्या बोल रहा है। राइट राइट तो और मैं गुस्से हो रहा हूँ, प्रणव बोले, क्या क्यों गुस्से हो रहा है, इससे तो नॉर्मल सी बात करिए। करेक्ट तो वो लेवल आज भी मेंटेन है। नाइस नाइस मतलब इतना ज्यादा कि जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं वो लोग यूएस में हैं, हाँ और मैं अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चों से कभी मिल नहीं पाया, हाँ तो उनके बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं। ओके हाँ, तो अगर कभी फोन पे बात होती है तो वो बोलते हैं कि अमित अंकल है, हाँ तो वो मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं उस समय के कॉलेज के कॉलेज के बताओ जरा ये बताओ ये कैसे हाँ, होता है, पापा इतने किस्सा सुनाते हैं। हाँ 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 तो वो कनेक्शन है आज भी। नाइस नाइस पर और भी जो लोग थे जो फ्रेंड नहीं थे पर एक्वेंटेंस था या ये था, और जो ग्रो नहीं कर पाए, वो तब भी वैसे ही सोचते थे। मतलब आई कैन रिलेट कि वो बंदा बोलता ही था यार मैं यही करूंगा, और वो यही कर रहा है। वो ही कर रहा है पर मुझे लगता है कि मैं उससे उसको डिमिनिश नहीं करता है, ठीक है ना, वो या उसकी इंडिविजुअलिटी। अपनी दुनिया में करेक्ट मस्त है। हाँ, अपनी दुनिया में मस्त है। मतलब तो आई एम अ पर्सन जो अगर इफ समवन रीचेस आउट टू मी फॉर अ हेल्प, आई डोंट जज हिम, आई वुड जस्ट हेल्प हिम अनबायस्ड। अनबायस्ड तो फैंटास्टिक मतलब that is how I see relationship or I see people. awesome I know Amit since MBBS, Yeah. and we have spent some good quality time in the hostels together. ओके तो आपके तो अपोजिट हो गए बिल्कुल अच्छा So सर Pranav is a sincere, या सिंसियर बिल्कुल पढ़ने वाला, सीधा सीधा हाँ, बच्चा और मैं ऐसा खेलने कूदने वाला, Right, right. पढ़ाई में सिंसियर नहीं था। right अच्छा सर last question or one of the last question is about the spirituality, how spiritual you are, what do you take, whether it helps in your mind or to keep you calm, whether you do meditation. मुझे लगता नहीं है शायद आप meditation करते with your मेरी energy. personality बहुत opposite है। Opposite है, I हाँ। believe in I am very spiritual. Okay. हाँ, तो ऐसे spirituality की बहुत सारे meaning है। हाँ And how do you take the spiritual? yes meaning? yes So we kind of believe in a lot of astrology. We kind of believe in a lot of vastu. We kind Okay. of believe in a lot of gods. very We nice. kind of believe in तो ऐसे ऐसे जगह पे we go and worship जो आपने सुने भी नहीं होंगे। अच्छा हाँ, very तो, interesting sir. तो I think कोई कोई बताइए ना सर share करिएगा। वो चीज़ जैसे तो- जैसे there is this place called कुंभकोणम। अच्छा ये कहाँ पर है हाँ, तो this कुंभकोणम is in तमिलनाडु। अच्छा So कुंभकोणम is a place which was said that अगर यहाँ से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, ओके और वहां पे नासा की बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हैं, ये है। तो जैसे अपने 4 धाम होते हैं, वहां पे ये नवग्रह का आपको पूजा करवाते हैं हाँ यस 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 सो दिस इज अराउंड 400 किलोमीटर्स के अलग अलग जगह पे इनके टेम्पल्स हैं। अच्छा हाँ, तो कोई शनि का टेम्पल बनाया, कोई सूर्य का टेम्पल बनाया, कोई राहु का टेम्पल बनाया। हाँ ये मैंने सुना था राइट इस तरह से चार तो लोग हाँ आप इन पूर्ण 9 ग्रह की पूरी ये करेंगे। Okay. और मतलब 4-5 दिन लगते हैं, क्योंकि हाँ आप एक टेम्पल में गए, फिर हाँ, वापस आए, फिर दूसरे हाँ, टेम्पल में गए, फिर हाँ। वापस आए, और इस तरह से आप पूरा वो यस करोगे। यस But when I went there, because you're asking one example, Yeah, I'm just yeah. trying to tell you something specific. It is a total different world. अच्छा आप जब वहां बैठते हो तो उसकी जो एनर्जी आपको फील होती है, मतलब लोग बोलते हैं ना एनर्जी फील होती है, तो मेरे को लगता था मजाक कर रहा है। वाइब्रेशन वो हाँ, फील होता है हाँ, तो मेरे को पहले लगता था ये ऐसे ही बोल रहा है, हाँ या अपने को ना कुछ इंपॉर्टेंस देने के लिए बात कर यस रहा है, मेरे को यस वाइब्रेशन फील हुआ। यस यस तो जब वहां पे गया ना, तो मैं बोला, यार कुछ तो है, और वो जो कुछ है वो फील होता है। नाइस तो मैं नॉर्मली क्या करता था पहले, कि मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, बाहर निकल जाता था, हो गया काम, हो गया। हाँ वहां पे जाके मैंने मंदिर में बैठना शुरू किया, उसके परिसर में, उसमें गर्भगृह में हाँ, कि गर्भगृह नहीं, मतलब गर्भगृह में तो लोग अलाउ ही नहीं करते। अच्छा, तो उसके परिसर में, परिसर मतलब जो में, भी उसका परिसर है, तो surrounding वहां पे है। यू कैन फील दैट एनर्जी, एंड देन यू सिट एंड यू मेडिटेट देयर, इट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड देयर आर मंदिर्स वेयर आई क्राइड, मतलब लिटरली इमोशंस आ गए आपके इमोशंस आ गए कि यार ये हो क्या रही थी, एनर्जी कहाँ से फील हो रही है, एंड यू रियली फील दैट। मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट समवन इज टेलिंग यू टू डू दैट, बिकॉज हम लोग जिनके साथ गए ना वहां पे, देयर वाज अ गाइड, he never told us कि यहाँ पे एनर्जी है, कुछ है, वो तो उसका गाइड है, उसका काम है कि सर ये मंदिर, उसके बाद सेकंड, उसके बस बस हाँ हाँ, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट यू उसको ये नेचुरली आपको पूरा- फेल्ट हाँ, पर जब नेचुरली आप किसी ने आपको कुछ बताया भी नहीं, कुछ हो भी नहीं रहा, या तो क्या कभी कभी होता है ना कि यार प्रणव यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे ये फील होगा, हाँ। तो तुमको थोड़ा थोड़ा फील होने लगता तो आप माइंडसेट से जाते हो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, एंड वेरी रॉ मंदिर, मतलब अपने से कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, ओल्ड मंदिर, दिए जलते हैं वहां पे, लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, वाह तो अलग ही है। So does that experience also help you in your personal life, in your business life, professionally help करता है? मुझे क्या लगता है कि बिकॉज यू आर इन एन एनवायरमेंट वेयर एवरीथिंग इज अनसर्टन,
हम लोग जैसे हम जॉब करते हैं तो सब कुछ सर्टन होता सर, है, एक fixed सुबह है। 9 बजे जाना है, 6 बजे आना है, इतने दिन तारीख को सैलरी आ जाएगी, ये और फिर पता 1 नहीं। साल के बाद प्रमोशन है, 2 साल के बाद हाँ, प्रमोशन है, वो सब फिक्स है। हाँ, पर हम जिस सेटअप में उसमें सब कुछ अनसर्टन है, क्योंकि ऑल आर मूविंग वेरिएबल्स, दे आर ऑल Moving वेरिएबल्स। variables। हाँ, तो तुमको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो तुम मतलब उस माइंडसेट से काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम्हें कुछ चाहिए जिसको तुम पकड़ सको, पकड़ सको। कि यार भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है, कुछ Anchor है होता जो है। मुझे, हाँ एंकर है कि लास्ट में कुछ नहीं होगा तो यार मैं बजरंगबली का नाम लूंगा, वो बचा लेगा। कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर या वो अंदर की शक्ति अंदर से तो कुछ तो होगा ना यार, आपको डूबते को तिनका तो चाहिए, कुछ तो पकड़ो। सही सही तो मतलब दैट इज व्हाट आई थिंक हेल्प्स एट द एंड ऑफ द डे। यस। So I do a lot of puja. I do puja in the morning. I do puja in the evening. Nice. I do different kind of mantras. All that I do. वेरी नाइस। But that helps me keeping on going. हाँ। मतलब कि साला लास्ट में करोगे क्या? यस यस यस। नहीं, ये तो एस्पेक्ट बहुत डॉक्टर्स मतलब उनका पर्सनल एक्सपेक्ट होता भी है, कई लोग नहीं भी फॉलो करते हैं, बट आई फील कि यू व्हेन यू कनेक्ट विद द रियल एनर्जी, जैसे आपने कनेक्ट किया ना, इमोशन अपने आप होते हैं, देन थिंग्स आल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वो सब चीजें होने लगती हैं। सो इट्स अ गुड टू बी कनेक्टेड टू द रियल One थिंग। more question is coming to my mind. Do you plan short term, long term गोल्स। goals? I plan goals. I plan short term, long term goals. But as much as I plan, as much as it doesn't happen. but I plan. But Gives a that direction. helps. That That helps. helps. That helps. That helps. So do you plan in the like during the first day of your year, new year, और ऐसा कुछ है कि हर साल में कुछ नहीं, मैं बनाते हो? रोज प्लान करता हूँ। हाँ। और so we have these meetings amongst us where we do a goal planning. तो like Jan is when we start doing the planning पूरा, लोगों को planning मिल जाता है, सेल्स टीम को प्लानिंग टारगेट सब मिल जाता है, तो वी डू ऑल दैट, वी हैव ऑल दैट कल्चर ऑफ डूइंग ऑल दैट। Okay. पर्सनल लेवल पे भी एवरी डे आई प्लान कि कल के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं, गोल के हिसाब से हम कहाँ पर है, उसमें अगर कुछ मेरे को मदद करनी है तो वो क्या करनी है। So a lot of planning on different angles. which we Angles. do. Okay. डॉक्टर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट, and since you are managing 23 setups, how do you manage time? What is your mantra or what is your method of managing time? So I think if I have to give advice, is a different advice altogether for the doctors. But if I tell you what I do is very different. You So- just to tell what you do, because so- 23 मतलब 25 जगह 23 जगह बहुत मुश्किल So है। I think जब 4 या 5 सेंटर हुए ना, तभी पता चल गया कि हाँ। ये नहीं करना चाहिए, Yes. कि ये नहीं करना चाहिए। Okay. And then those ambitions, then you start fighting two thoughts in your mind. Yeah. ये नहीं करना चाहिए versus करना time चाहिए। manage कर ले, ये कर ले, वो हाँ, कर ले। हाँ, हाँ। भाई ऐसा थोड़ी है कि लोग, कितने सारे लोग हैं जो हजारों सेंटर चलाते हैं, Correct, तो correct. तू 4 सेंटर में थक क्यों रहा है? Then what I said is that you have to make right SOPs and you have to make right audit team. Okay. मतलब आप ये मान लो कि अगर एक सेंटर चलाना है तो ये 10 चीजें आपको चाहिए, और ये 10 चीजें हो रही है कि नहीं हो रही। Okay, so you have SOPs, and then there is a check master at every position. Exactly. Every department you have a check master. Yes. Okay. एंड वो जो चेक मास्टर है, वो जब आउटलायर होगा या उससे बाहर जाएगा तो मेरे को आएगा, आएगा। एंड देन आई ओनली अटेंड टू दैट, Those things. ओनली अटेंड टू दोस थिंग्स, दैट्स इट। And how do you delegate? Do you delegate tasks to So the we have a team. हाँ. We have a whole team who does the delegation and everything. There is an audit team who does the audit. There is a delegation team who does the delegation. पूरा वो एक SOP पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब उससे आप कोई भी सेंटर चला सकते हो दुनिया So that means SOPs is a checklist, SOPs, and a structure of that one center, and then you can replicate those things. में। So I think time management is more about understanding कि मेरी जरूरत कहाँ पर है, and taking away all the other things and giving the time to that thing. So I think that is very dynamic. It's not fixed नहीं है कि भाई सुबह उठे, आधा घंटा योगा किया, फिर 1 घंटा एक्सरसाइज किया, फिर 2 घंटा ये किया, फिर 1 घंटा फिनेंस के साथ बैठा, 1 घंटा ऑपरेशन के साथ, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। Because your day is different every day. Yeah. Every day new challenge होता है। Yes, exactly. Good. Thank you so much, sir. बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट। Fantastic talking to you, Very and we fast. also learned a lot of things. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, एंड मुझे लगा बहुत सारी इंसाइट है, स्पेशली आपका स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड एंटरप्रेन्योर। तो जो भी लोग देखेंगे बहुत कुछ लर्न करेंगे, एंड वी विल शेयर योर लिंक्स एंड ऑल दिस थिंग डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन कनेक्ट विद यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।